Good morning to you all. Good morning, sir. In our last lecture, we had talked about some disease. Yeah? Yes, sir. We talked about the disease of not speaking English. And we talked about the excuses that we give, excuses that we make. Okay, when we stop ourselves, actually, nobody stops us. When we stop ourselves from learning English. Isn't it so? And what is the name of the disease? Excusitis. What is the name? Excusitis. What is the meaning of excusitis? बहानों की बीमारी होती है. तो आज हम सब बहानों को, हमने जो अपना लास्ट एक्सक्यूज देखा था, आपने अगर वो नहीं अटेंड किया तो you can go to our YouTube channel and last lecture you can check. I'd say that one of the treatments of this disease is starting. One of the treatments is starting. And when to start? Start now. So today, what we are going to do, we are going to give you a head start in spoken English. Okay? We are going to tell you how to speak. We will not teach you grammar. As I told you earlier, don't sweat over grammar. Start. So, yeah, structures are important. We will teach you structures also. But one of the very important things to learn in English is to speak immediately. The moment you get a chance to speak, don't wait. Grab the opportunity and start speaking. Okay? So we'll give you our first lesson of spoken English. And the first lesson is when somebody asks you to introduce yourself. And you'll get yourself into trouble if you don't know the answer of this simple question. May I know about you? And then you are at a loss. Right? And generally you stop at, my name is this. Okay, my name is Ravi, my name is Rakesh. What after that? Yeah? So when we talk about introduction, so there are few things that you should always talk about. Like if somebody say, may I have your introduction please? So what will you say somebody? आप क्या बोलेंगे किसी को? My name is Deepnaran. I belong to Basti and I am doing my graduation from Lucknow University. Very good. So when he talked about, so first of all, what did he say? My name is. Okay, so he said, like when he said, my name is this. So my name is. Okay, whatever your name is. It's as simple a sentence as, and you have used it many a time. आपने कई बार किया ना इस्तेमाल ये, तो आप इतना तो बोल सकते हैं. My name is Ravi. My name is Rakesh. My name is Mohan. My name is whatever. My name is Rita. Okay, so you can talk about this. So always, and remember one thing, it's not about English only, it's about the style, it's about the confidence. Keep your chin high. Okay, and don't hesitate. आप अगर पहली बार भी बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है किसी को बताएं कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ. तो आप बिल्कुल उस की तरह होंगे कि पहली बार कोई गया, हवाई जहाज में बैठा और बहुत घबरा रहा था, सीट बेल्ट बांध दी और जब हवाई जहाज शुरू होने वाला था फिर उससे रहा नहीं गया. उसने एयर होस्टेस से कहा, मैडम सब ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है सर, आप बैठे रहिए कुछ नहीं होगा. उसे रहा नहीं गया, फिर भी उठा और सीधा कॉकपिट में, सीधा पायलट के पास. सर सब कुछ ठीक है ना? मैंने चिंता काहे कर रहे हो? सर पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ. पायलट बोला, यार तुम चिंता काहे करते हो, मैं भी पहली बार चला रहा हूँ. So we are like that only. हम कुछ ऐसे ही हैं. You get the point? And when you say कि you are first timer, don't you worry. But you need not tell to the pilot. कोई जाकर बताने की जरूरत हो ना, पहली बार ट्रैवल कर रहे हो. अरे आराम से बैठो, पेटी बांध के बैठो और दूसरों को देखते रहो क्या कर रहे हैं. बस वही करते रहो. ऐसे करते हैं कि नहीं? मैगजीन निकालो और पढ़ना शुरू करो और बगल में बैठा हुआ बस उसको यही तो कहना, हाय हाउ आर यू. ओके, and then the journey begins, है ना? And then enjoy the journey. जो आपके अंदर की hesitation है, जो आपके अंदर का डर है, वो अंदर ही रहे, वो चेहरे पर ना है. So when I ask you introduce yourself, say my name is Deepnaran, or say my name is Rita, or say my name is Savita. Isn't it? And this is as simple a structure as you can have in English. And what is the second sentence you spoke? I am doing my graduation. I belong. Yeah. So you can say I belong to. So what can you say? I belong to.
Now, if you look at this structure, I belong to Lucknow. Suppose you say this. Now, we look this structure and this structure. There's a slight difference. Here we have the verb, which is called the verb be. इसको हम क्या बोलते हैं? Verb be. तो अगर आप be को present में इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Is. What do we say? Is. Okay, and it all will depend upon tense क्या है, and the second thing इसका subject क्या है. तो इसका subject क्या है? Name. What is the subject? Name. और ये subject singular है. Subject कैसे है ये? Singular. तो मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? My name are तो नहीं बोला? No. क्या बोला मैंने? Is. My name is. And the same way when we come to this, so remember one thing. When we talk about verb, this is also verb and this is also verb. This is actually action verb and this is be verb. ये कौन सा वर्ब है? Be verb. So when we talk about be, तो हम be को ऐसे डिफाइन करते हैं कि be प्रेजेंट में भी होता है. तो जब be प्रेजेंट में होता है तो फिर से is am are and otherwise it is was were. It is not where. Some people call it where. It is verb. What is this? And it is not watch. Was. What is this? Was. So it is and are. Was, were, and has been, have been, or had been. Okay, so this is your verb be, and verb be generally tells you the state of something. ये किसी चीज की क्या बताता है? अवस्था बताता है. तो यहाँ पर ये अपने नाम की अवस्था यानी कि नाम बता रहा है, और यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं. ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया? मैंने प्रेजेंट का बताना है ना. मैं ये थोड़ा कहूँगा कि my name was this. Like in 10th class my name was Sujit and today my name is Ajit. ऐसा नहीं बोलेंगे ना, आपको तो प्रेजेंट ही चाहिए. तुम क्या बोलेंगे? My name is whatever. Okay? या तो आप ये बोलेंगे तो ये हमने यहाँ पर लगा. लेकिन जो ये वर्ब है, this is called action verb. जैसे इसके तीन फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट. ऐसी एक्शन वर्ब की भी तीन फॉर्म होती है. क्या होती है? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट. कैसे बोलते हैं हम इसको? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट. ओके, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं. सो वी हैव बिलोंग एंड देन वी हैव बिलोंग्ड एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो बिलोंग्ड. नाउ बिकॉज़ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, हम किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? बिलोंग. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर मैंने लिखा यहाँ आई तो मैंने क्या लगाया? बिलोंग. लेकिन अगर मैं लिखता रवि तो मैं क्या लगाऊंगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा. एक तो टेंस पर और एक इसके सब्जेक्ट पर. ये जो सब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं पर्सन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? पर्सन. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पर्सन कौन सा है, व्हिच पर्सन. और उस पर्सन के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, उसकी क्या बता रहा है? वो एक स्टेट या हैबिट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है. तो जब वो फैक्ट बताएगा तो हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्या बोलेंगे हम? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूंगा, सो आई विल से हियर, सो आई विल से बिलोंग, बट व्हेन इट सेज रवि तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिलोंग्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ आई टॉक अबाउट पर्सन, तो अगर मेरे पास लाइक या if I can erase this, yeah, I can make it here. So we have three persons in English and singular plural. So you have singular, you have plural, you have first person, you have and then you have so first person is जो बात करता है. तो यहाँ बात कौन कर रहा है? I. तो वो कहाँ आएगा? सेकंड पर्सन, जिससे बात की जा रही है तो क्या होगा? थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रही जा रही है तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन. सो दैट मींस ही, शी, इट और एनी नेम. एंड देन द प्लूरल ऑफ द सेम. आई का प्लूरल क्या होगा? यू का प्लूरल. एंड देन यू विल हैव दे, दीज, दोस और नेम्स. ऐसे तो होता है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक फिफ्थ. आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट जब इस्तेमाल करेंगे, ब्लॉक इसमें फिफ्थ में कुछ भी आएगा तो उसमें हम एस लगाएंगे. क्या लगाएंगे? एस. यानी कि अगर मेरा पर्सन यानी सब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसमें क्या लगेगा? एस लगेगा. क्या लगेगा उसमें? एस. सो आई विल नेवर से रवि बिलोंग टू. मैं क्या बोलूंगा? रवि बिलोंग्स टू.
लेकिन अगर अपने लिए करूंगा तो I belong to। तो अगर कोई मुझसे आज के बाद पूछेगा कि आपने I के साथ S क्यों नहीं लगाया, तो मैं सिंपल आंसर क्या दूंगा? Because I is first person Singular. and with first person singular we don't use S. We use S or ES only with Third person. third person Singular. So this is your person table, which is very important, and all the verbs revolve around this person table or tense. ये बेसिक चीज है, बस आपको ग्रामर में जो शुरू में आपको बस यही याद रखना है, बाकी चीजें हम आपको बताते रहेंगे as the time comes. ओके, तो हम क्या बोलेंगे? My name is Ravi, my name is Rakesh, my name is Savita and I belong to। हाँ, belong from नहीं होता, belong to। ये दूसरी चीज याद रखनी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ preposition जुड़ता है खास, तो वो आपको बार बार करने से आएगा। अगर आपने किसी को, मैंने बार बार बिलोंग टू बोला, ओके, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिलोंग फ्रॉम बोलेगा तो मुझे गलत लगेगा, तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इसने गलत बोली या मैं गलत हूँ, सो कैन करेक्ट। इसको मैंने बोला था ना आपको ऑटो करेक्शन, वो अपने आप होगा, आप शुरू कीजिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कहा ना, अरे रवि रोज सुबह उठकर बाजार जाती है, क्या बोलेंगे? तो ये आपको पता चल गया, इसमें कोई रूल थोड़ी ना लगा, आपने तो कह दिया कि अरे सर यहाँ ये नहीं होगा, तो यू इज इट क्लियर? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब मैं लाइक मैंने से बिलोंग तो मैं क्या बोलूंगा? टू, लेकिन जब मैं बोलूंगा हेल फ्रॉम, एंड नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों का मतलब एक है। आई बिलोंग टू लखनऊ बट आई हेल फ्रॉम लखनऊ, और आई कैन ऑल्सो से आई एम फ्रॉम लखनऊ। मैं और क्या बोल सकता हूँ? आई एम फ्रॉम लखनऊ। ये आपको थोड़ी चीजें याद रखनी है, बाकी स्ट्रक्चर सिंपल है। माय नेम इज रवि, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई हेल फ्रॉम लखनऊ, एंड देन द थर्ड सेंटेंस ही स्पोक वाज, दीप स्पोक वाज, आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन। क्या बोला इन्होंने? सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग प्रेजेंटली। तो जब आप प्रेजेंट का कोई कंटिन्यूटी दिखाते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, यानी इज एम आर और आई एन जी। क्या यूज करेंगे? सो राइट नाउ व्हाट आर यू डूइंग? आई एम लर्निंग इंग्लिश। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम लर्निंग इंग्लिश। एंड व्हाट एम आई डूइंग? What am I doing? बोलिए speak. You are teaching English. Present continuous. ये present की continuity दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? present की continuity. So now you can give your introduction. Yes, sir. Somebody else will try. Yes, so I'll give you one more try and I'll say, please give your introduction, and I'll say, my name is Vinit Kapoor. I belong to Lucknow. Okay, and I'm doing my graduation from Lucknow University. Or whatever you are doing, or you may say that I'm working in a multinational company, or you can say I'm a sales representative. Whatever you are doing, you can give your present status. Okay? Will somebody else give it a try? You can give it a try? Yeah? Anybody? My name is Sharda Saxena. I belong to Jhansi, and I am preparing. Right now, I am preparing for government jobs. Yeah. So I'm preparing for competitive exams, you may say. Okay, is it clear? Yes.